What is correlation? Tell me. See, as the name suggests, it's a relation between two variables, correlation. But why do we call it as correlation? Because if you have two variables or more than two variables, it gives you the degree of relationship of between two variables. It only tells about the degree of relationship. ठीक है, मतलब आपके दो वेरिएबल्स कितने कोरिलेटेड हैं, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर टू अ हायर डिग्री और टू हाई एक्सटेंट और टू लो एक्सटेंट. ठीक है, suppose if I say if x represents the marks in maths, ठीक है, and y represents the marks in English. ओके, तो आपको x और y दो मार्क दो वेरिएबल्स हैं and x is representing marks in maths and y is marks in English. ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो स्टूडेंट मैथ्स में भी अच्छा है वो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा होगा, या अगर वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है तो वो मैथ्स में भी बहुत अच्छा होगा, है ना. सो वी आर गिवन द मार्क्स एंड वी आर गिवन रोल नंबर्स ऑफ सम स्टूडेंट्स, सपोज दे आर अप टू 10. ठीक है, और मार्क्स हमें दिए हैं, इसमें दिस इज आउट ऑफ 50 एंड दिस इज आल्सो आउट ऑफ 50. सो मार्क्स इज 40 and 20, 29, 35, sorry, 21 and 22. ठीक है, and last marks is 30 and 35. So based on this data, can you predict about the relationship between marks in mathematics and marks in English? Okay, है ना. So correlation only determines the degree of relationship, how they are related to each other. Two or more variables are related to each other. Tell me, आपने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ा होगा? Remember Carl Pearson's coefficient of correlation? पढ़ा है? Yes, ma'am. What is that? It is denoted by small r, और आप इसको रो से भी डिनोट करते हो, है ना. And the value of the correlation coefficient is lying between -1 and 1, है ना. तो अगर -1 और 1 के बीच में r की वैल्यू होती है, if r is 0, if you say r is 0, so there is no correlation between the variables. ठीक है, अगर r 0 है, ठीक है, and if r is equal to +1, r is +1, this means there is perfect positive correlation. If r is +1, this means perfect positive correlation. And if r is -1, tell me, it's perfect negative correlation between the two variables. Okay. And what if r is lying between 0 to 1? Tell me, if r is lying between 0 to 1, tell me, you simply say it's a positive correlation. And if r is lying between -1 to 0, it is negative correlation. And what are positive and negative correlations? Tell me. देखो, पॉजिटिव नेगेटिव और नो कोरिलेशन का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स के बीच में इफ यू डोंट फाइंड एनी रिलेशनशिप, है ना, सपोज एज एंड suppose I find the relationship between age and height, ठीक है, and you are given some data, कि किसी person की age अगर 50 है and his height, her height is 175 centimeters. Now age 25, height is 163 centimeter. Age is 10 years, okay, and height is age is 40 years and height is 170 centimeters. ठीक है, तो आपको एज और हाइट का डेटा दिया है एंड द एज ऑफ द पर्सन इज अबव 20 इयर्स. ठीक है, तो 20 इयर्स से ज्यादा लोगों को का आपको हाइट का डेटा दिया है
and if you find R to be the correlation coefficient is 0.024 something value, then what do you say? What can you predict about this value? Tell me. There is almost negligible correlation between the age and negligible है, देखो 0.0 है ना, and if you add one more zero over here, okay, it's 0.0024, so this is negligible है ना. If you find the relationship like that, तो आप कहते हो कि अगर हाइट और ब्लड प्रेशर का कोरिलेशन निकाले, तो हाइट का तो ब्लड प्रेशर से कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है ना, तो इट देयर विल बी नो कोरिलेशन बिटवीन द टू. देखो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है अगर आपके दो वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मींस इफ x is increasing, y is increasing, and if x is decreasing, y is also decreasing. ठीक है, जो मैंने पीडीएफ नोट्स शेयर किए हैं आपके साथ, उसमें सारी थ्योरी पार्ट भी है. ठीक है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं. तो if x is increasing, y is also increasing, x is decreasing, y is also decreasing, is called a positive correlation, means x and y are moving in the same direction. ठीक है, अब negative correlation, they are moving in opposite direction है ना. No correlation means there is no correlation between the two variables. Like if you draw a scatter diagram, तो आप x और y के बीच में कोई भी correlation find out नहीं कर सकते. You cannot even draw a line or a curve. Okay. Tell me, what is correlation? Correlation only determines the degree of relationship between the two variables. ठीक है, it is represented by it is denoted by R or rho. Rho से भी करते हो, but generally in statistics we use only R. R is lying between -1 and 1. If R is 0, there is no correlation. If R is +1, perfect positive. R is -1, perfect negative correlation. ठीक है. Now we have to find the correlation between two variables. So we have a formula for that. देखो अगर आपने, there are some direct formulae or there are shortcut methods, but we always prefer to do it by shortcut method. If you remember the formula, please tell me. R is equal to, tell me, it's sigma xy. Sorry, आवाज नहीं आ रही बेटा. Yes, very good. देखो it's n into, if I am not wrong, it is sigma xy minus sigma x sigma y divided by under root. There are two under roots. No. So you have n sigma x square minus sigma x whole square. मुझे बात क्लियर नहीं आ रही है बेटा. मैम dx dy मैं बताती हूँ. assumed. हाँ राखी, assumed mean के मेथड से. देखो मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि क्लियरली. यस मैम. क्लियर है, ठीक है. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना. ठीक है, देखो ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है. देखो राखी, ये dx dy ऑब्वियसली आप यूज करोगे, बट इफ यू हैव द वैल्यूज ऑफ x into y और फिर समेशन, सिग्मा x की वैल्यू आपके पास से सिग्मा y की है. ठीक है, और सिग्मा x स्क्वायर है आपके पास, यू हैव सिग्मा y स्क्वायर. तब आप क्या करोगे, यू विल डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर r. ठीक है, फिर सपोज वी आर गिवन द सीरीज और हमें तब ये सारी वैल्यूज r की वैल्यू निकालनी है. तब हम क्या करेंगे, विल यूज n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx sigma dy divided by under root and under root n sigma dx square minus sigma dx whole square. Okay, then n into sigma dy square minus sigma dy whole square. ठीक है, तब हम ये वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं.
Okay, whenever you are given the series and you want to find the value of correlation coefficient. ठीक है, और ये फॉर्मूला ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको डायरेक्टली ये वाली वैल्यूज यूज करनी पड़ती है. ठीक है, देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स लाइक दिस. ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम करवाती हूँ बेस्ड ऑन दिस. कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, ओके. नाउ वी हैव, देखो एक और फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, दैट इज सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको तब यूज करना है व्हेन ऑल द वैल्यूज आर गिवन. ठीक है, ये भी तभी यूज करना है जब वैल्यूज गिवन है, और ये भी तभी यूज करना है व्हेन वैल्यूज आर गिवन. ठीक है, इसकी वैल्यूज भी गिवन होंगी और इसमें भी वैल्यूज गिवन होंगी, और ये आपको तभी यूज करना है जब आप सीरीज में अप्लाई करोगे. ठीक है, सो लेट्स डू वन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस. देखो there is a problem. See, a computer while calculating the correlation coefficient between the two variables x and y has obtained the results. देखो n आपके पास है 30, you are given sigma x equal to 120, sigma x square given is 600. ठीक है, sigma y given to you is 90, sigma y square is 250, and sigma xy is 335. ठीक है, it was later discovered, see all the values are given, yes, it was later discovered that at the time of checking it is copied two observations as, देखो ये x y की values हैं और कॉपी क्या हुआ 8, 10, 12 और 7, while the correct values are के पास जो करेक्ट वैल्यूज हैं, these are x y 8, 12, 10 and 8. ठीक है, so you have to obtain the correct value of correlation coefficient. The question is, you have to find the correct value of r. r की वैल्यू आपको निकालनी है. Now tell me what is r. r का फॉर्मूला हम सबको पता है ना? What is r? r is n sigma xy minus sigma x sigma y divided by under root and under root n sigma x square minus sigma x का whole square. It is n sigma y square minus sigma y का whole square. ठीक है, ये हमें हमारे पास वैल्यूज r की वैल्यू होती है, फॉर्मूला यही है. अब हमें करना क्या है, जो हमारी ये वाली वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज क्योंकि रॉन्गली कैलकुलेटेड है ना, क्योंकि करेक्ट वैल्यूज ये थी और कॉपी ये वाली हो गई. तो आपको क्या करना है बताइए? आपको क्लास, in order to find the correlation coefficient we have to find correct value of sigma xy, correct value of sigma x, sigma y, sigma x square and sigma y square. इनकी करेक्ट वैल्यूज निकालनी है. तो जो रॉन्ग वाली वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज माइनस कर देंगे, x की ये दोनों वैल्यू माइनस होंगी और ये दोनों प्लस हो जाएंगी. यस और नो? है ना. सिमिलरली x स्क्वायर में है ना, ये वाली वैल्यूज माइनस होकर ये वाली वैल्यूज प्लस हो जाएंगी. तो अब हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को. देखो n तो ऑब्वियसली 30 ही रहेगा. ठीक है, सो नाउ वी विल फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ sigma x first. Excuse me, ma'am.
यस, हाँ जी बोलो। मैम इसमें दो ही एक्स वाई की वैल्यूज दिए हुए हैं, मतलब इसमें डेटा मिसिंग है। देखो वो जो टेबल रही होगी ना हमारी बेटा, टेबल में जो एक्स वाई की वैल्यू 8 और 12 थी ना, उसके प्लेस पर 8 और 10 होना चाहिए था। तो एक वैल्यू तो करेक्ट है ही, है ना। और y की वैल्यू जो है वो 10 और 7 की बजाय 12 और 8 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम ओके, देखो क्या मतलब करते हैं। सिर्फ दो ही देखो, दो ही एंट्रीज दी हुई है पर बहुत हाँ सारे। हाँ, दो ऑब्जर्वेशन गलत थी। मतलब जो 30 में से बेटा, 30 में से ना सिर्फ दो ऑब्जर्वेशन गलत थी। ओके, ठीक है, 30 में से दो गलत थी। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स क्या होगी? देखो, जो आपकी इनकरेक्ट वैल्यू है वो 120 है। तो मैं यहाँ पर 120 में ये जो इनकरेक्ट थी -8 और -12, देखो कर दिया माइनस। और अब मैं ऐड क्या करूं? 8 और 10 ऐड हो जाएगा। बोलो, ये बात समझ में आती है सबको? जो मेरी इनकरेक्ट वैल्यू थी 120, उसमें से मैंने इनकरेक्ट -12 और -8 कर दिया और ऐड कर दिया करेक्ट वाली ऑब्जर्वेशंस को। बोलो, ठीक है। फिर सिमिलरली सिग्मा वाई है मेरे पास 90, उसमें से जो y की करेक्ट वैल्यूज थी, इनकरेक्ट तो 10 और 7 थी, तो -10 और -7, और करेक्ट वाली ऐड हो जाएंगी, +12 एंड +8। ठीक है, ठीक है बेटा, हाँ जी, डन। अब आप, यस मैम। हाँ जी, अब आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है 600, इसमें से करेक्ट वैल्यूज, ठीक है, जो करेक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स है, इनकरेक्ट पहले तो माइनस करनी है। तो 8 स्क्वायर -12 स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है बेटा। ठीक है, और करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर +8 स्क्वायर +10 स्क्वायर। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड द मैम करेक्ट इधर वैल्यू। 600 थी सिग्मा यस, एक्स स्क्वायर बोलो। या 60 थी। हाँ 600 है, देखो इट्स 600, ओके 600। ठीक है, ठीक है। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर था 250, तो इसमें से 10 स्क्वायर -7 स्क्वायर +12 स्क्वायर और +8 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 12 और 8 करेक्ट वैल्यूज हैं। तो आप प्लीज इसको कैलकुलेट करें जल्दी से, मैम ये इसमें सारी थर्ड चीजें। वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? थर्ड वाला कौन सा? अच्छा, जो मैंने बताया था आपको, यस मैम। वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको जो सारी ऑब्जर्वेशंस दी थी ना, इसमें देखो, अगर हमें सिर्फ उनकी वैल्यू दी होती, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, ऑब्जर्वेशन दी ही नहीं होती तो हम वो यूज कर लेते, है ना। वो भी कर सकते हैं पर ज्यादा वैल्यूज हैं तो फिर एन वाला किया। एक मिनट रुको, आई लेट मी रेक्टिफाई दिस, अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट वेट। सिग्मा एक्स वाई इज 335 माइनस एक्स इंटू वाई करना है बेटा। एक्स इंटू वाई इज 8 इंटू 10 -12 इंटू 7, है ना। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस, मैं वो वाला भी अभी एक्सप्लेन करती हूँ, 8 इंटू 12 +10 इंटू 8। आप मुझे ये वैल्यूज प्लीज कैलकुलेट करके बताएं, व्हाट विल बी दीज वैल्यूज।
क्लास टेल मी प्लीज। देखो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 आएगा तो ये 118 होगा, ठीक है। एंड दिस विल बी -17 + 20 तो 93 है ना। 8 और 8 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -144 + 100 -44 600 में से करेंगे तो इट विल बी 556। यस है ना। फिर सिग्मा वाई स्क्वायर करो, मैम 144 309 64। ओके गुड। ये 347 वाली वैल्यू 347, ठीक है। अब हम ये सारी वैल्यूज जब यहाँ पुट करेंगे ना आर में, तो विल गेट करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। So this will be 30 multiplied with 347 minus sigma x is 118, sigma y is 93 divided by under root and under root. So n is 30 into sigma x square is 556, ठीक है, minus 118 whole square, ठीक है। थर्टी सिग्मा वाई स्क्वायर 309 माइनस 93 होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करने आ सकता है, ठीक है। देखो एक और चीज, थैंक यू सो मच जो भी थर्ड वाला फॉर्मूला जिसने भी रिमाइंड करवाया है, प्लीज थैंक यू। मैं बताती हूँ, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर गिवन व्हाट स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई आर रिप्रेजेंटिंग ओवर हियर, ठीक है। देखो सॉरी मैं ये उस टाइम पर मैं आई डिडंट राइट एनी फॉर्मूला फॉर दिस स्मॉल एक्स। देखो ये स्मॉल एक्स क्या है बेटा, स्मॉल एक्स ओवर हियर विल बी x माइनस एक्स बार अपॉन एनी कॉमन रेशियो विच यू वांट टू डिवाइड विद, ठीक है। एंड स्मॉल y विल बी y माइनस y बार डिवाइडेड बाय k। अब देखो ये h और k मैंने दो डिफरेंट क्यों लिए हैं, क्योंकि इस टाइप का भी मैं आपको प्रॉब्लम भी शेयर करूंगी। हम ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हैं माय डियर व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द मीन x बार और y बार। तो इसलिए हम अगर थर्ड क्वेश्चन में इसमें मैंने बोला ना आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो, तो इसमें आपको करना बेसिकली क्या पड़ेगा, पहले आपको मीन निकालने पड़ेंगे x और y के, ठीक है। फिर ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें x और y का मीनिंग ये है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दिस कि मैं उस हाँ मैम बोलो बेटा राखी। मैम बुक में तो h और k कुछ नहीं गिवन, सिंपल x माइनस एक्स बार हाँ और ये थर्ड वाला y है, माइनस y, x की और y की वैल्यू नहीं है बेटा। y। जब आप बेचे वो करा हुआ है डिवाइड, आप देखो उसमें जाके प्रॉब्लम में, क्योंकि जब आप ये करोगे ना x माइनस एक्स बार तो एक डिवाइड भी किया हुआ है, देखो जरा बुक में। डिवाइड किया हुआ है, चेक करो। इज दिस राखी? राखी बात कर रहे हो बच्चे? यस मैम, मैं आपको शेयर करती राखी हूँ में एक देखो बार। डिवाइड किया हुआ है, हाँ आप करो मेरे साथ शेयर। देखो कॉमन रेशियो से डिवाइड किया हुआ है, आप चेक करो प्लीज। ठीक है, आप चेक करना, ये कॉमन रेशियो से इसने डिवाइड किया हुआ है। अब देखो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी, ये वाला यस मैम। है ना, ठीक है। मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी शेयर किए आपके साथ, ठीक है, वो भी आप चेक कर लेना प्लीज। Okay, have you done rank correlation coefficient? रैंक कोरिलेशन करा है आपने? मैम पिछले क्वेश्चन का आंसर है आपके पास, आर की वैल्यू हाँ जी है। क्या है मैम?
आपने निकाला है आंसर? एक मिनट में बताती हूँ। नेगेटिव हाँ, नेगेटिव कोरिलेशन माइनस चेक। यस, इट इज -0.43। -4 गलत आ रहा है। गलत आ रहा है? सही आ रहा है, यही आ रहा है। मेरी से गलती हो गई। हाँ, हो सकता है। मैम नेगेटिव का मतलब ये है कि एक इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल तो दूसरा डिक्रीज होगा। हाँ, मींस देयर इज यस, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना? बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे ना एक क्वेश्चन है, एक वेरी गुड क्वेश्चन मैं भी बताती हूँ। मैम चैट विंडो में भेजा है उसमें, उसमें बोलो। तो डिवाइड नहीं किया हुआ है काल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में। किसमें आप बताओ मुझे पेज नंबर जो मैंने नोट शेयर किया मैम है। पेज आई गेस वही है मैम, चैट विंडो में भेजा है ना उसको। हाँ बताओ। अच्छा, चैट विंडो में भेजा है। एक मिनट, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा। वेट, मैं देखती हूँ। चैट विंडो में राखी, ये कहाँ से है? ओके, ये इसमें कह रही मैम हूँ। एक बुक्स मिनट के रुको। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये बेटा डिफरेंट, इट्स अ ठीक है। हाँ, इसमें एक मिनट, वेट। नाउ आई हैव टू रिमूव दिस। अच्छा, अगर आप लिसन, इसमें डिवाइड नहीं किया है राखी, इसमें डिवाइड नहीं किया, लेकिन अगर आप डिवाइड कर दो ना कॉमन रेशियो से तो कैलकुलेशन और सिंपलर हो जाएंगी। इसमें नहीं किया है इसने डिवाइड, बट इफ यू डिवाइड इट बाय दिस यू कैन मेक द कैलकुलेशन सिंपलर। ठीक है, मैम ये एच और के आएंगे कहाँ से? देखो जो आपकी एक क्वेश्चन मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। वेट, एक अभी मैं स्क्रीन पर शेयर करती हूँ। देखो एच और के कहाँ से आएंगे, जब आप x माइनस एक्स बार बाय एच करोगे और वहाँ y माइनस वाई बार बाय के करोगे। अब डिनोमिनेटर में देखो, जो होल स्क्वायर है वहां से एच स्क्वायर और के स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आके एच और के बन जाएंगे। तो जो डिनोमिनेटर के एच और के हैं वो न्यूमरेटर के एच और के से कैंसिल हो जाएंगे, है ना? तो मैं भी करती हूँ शेयर आपके साथ। ये ठीक है? ये भी ठीक है? मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट। वेट, एक मिनट रुको। वेट, मैंने जो पीडीएफ शेयर की है उसमें भी है ये। एक मिनट शेयर करती हूँ। एक मिनट, लेट मी शेयर विद यू। एक्चुअली आई हैव बुक विद मी, घर पे बुक है तो आई हैव टू सर्च फॉर दैट। यस, देखो
if you can see this problem. राखी ये दिख रही है प्रॉब्लम सबको? This problem. Yes, can you see this? इसमें देखो यहाँ Yes, पर माय डियर, यहाँ पर देखो 10 से डिवाइड किया और या 100 से डिवाइड किया है ना? Here he has divided it by 10 और या 100. This is पेज नंबर 220 जो मैंने नोट्स शेयर किए हैं उसमें है ये, ठीक है? तो जब आपने x बार y बार कैलकुलेट कर लिए हैं उसको, उसके बाद भी कैलकुलेशंस को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसने कॉमन रेशियो से डिवाइड कर दिया है, ठीक है? तो अगर आप उस फॉर्मूला में डिवाइड करें तो भी आंसर सेम आएगा और नहीं करेंगे तब भी सेम आएगा। अब सेम क्यों आएगा? क्योंकि देखो जब ये वाले एच और के होंगे ना, यहाँ से जब आएंगे, एक मिनट, तो लेट मी शो यू। सी, जब ये x माइनस एक्स, यहाँ से जो h आएगा वो इसका वाले h से कैंसिल हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर करके जब आप वो h बाहर आएगा तो इसके h से h कैंसिल हो जाएगा और इसके k से k कैंसिल हो जाएगा। सो इफ यू डिवाइडेड बाय h और k, इट डजंट मैटर, है ना? मैम एच और के की वैल्यू ठीक है। पता कैसे चली? 10 और 100 है। अब देखो कॉमन रेशियो, कॉमन जो रेशियो है ना यहाँ पर इस वाले प्रॉब्लम में इसने h को 100 और k को h को 10 और k को 100 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि जब आपने इसमें देखा कि 100 10 10 का डिफरेंस आ रहा है, आई मीन 10 कॉमन रेशियो वो आ रहा है, रेशियो। देखो जब आप 50 माइनस 120 करेंगे तो इट विल बी माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 माइनस 30 30 20 40 50 एंड 70। तो उसको बैलेंस करने के लिए इसने 10 से डिवाइड कर दिया है बस। तो अगर आप नहीं करना मैम ये चाहते, तो इट डजंट इजी मैटर। करने के लिए है ना कैलकुलेशन बस। हाँ हाँ, बस वो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए है, ठीक है? चलो मैं यहाँ ये लिख देती हूँ। और इफ यू वांट टू राइट दिस एज x माइनस एक्स बार, और यू कैन यूज दिस एज y माइनस वाई बार, दैट्स इट, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो, तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है? बट बेस्ट फॉर्मूला इज यूजिंग दिस assumed mean method, dx dy जो करते हो ना आप, इससे ही करना पेपर में। जब तक ऐसे नहीं बोला हो तो आप मीन पर नहीं जाइएगा, ठीक है? अच्छा, टेल मी व्हाट इज रैंक कोरिलेशन? बताइए। When you have correlation coefficient formula, then why do you need rank correlation? Tell me. बोलिए। See, suppose you have there are two judges, ठीक है? There are two judges, judge 1 and you have judge 2, ठीक है? And there are 10 contestants, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है? तो रैंक कोरिलेशन आपको क्यों चाहिए बेटा? आपके पास 10 कंटेस्टेंट्स हैं और जजेस हैं 2, ठीक है? 3 जजेस भी हो सकते हैं, 4 जजेस भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम 2 2 का पेयर लेके फिर कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं। अब देखो जज 1 कहता है कि जो कंटेस्टेंट 1 है, कंटेस्टेंट 5 को फर्स्ट रैंक देता है, और जज 2 कंटेस्टेंट 4 को सेकंड, और वो कंटेस्टेंट 7 को फर्स्ट रैंक देता है, ठीक है? और ये इसको सेकंड दे रहा है, ठीक है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है? इस हिसाब से तो इनके टेस्ट कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि ये इसको 10th दे रहा है और ये इसको सेकंड, ठीक है? ये मैं रैंडमली कोई भी डिजिट्स चूज कर रही हूँ। इसने इसको फर्स्ट दी, चलो इसको हम 8th दे देते हैं, ठीक है? ये इसको सेकंड दे रहा है, फोर्थ इन दोनों ने इन्हीं को दिया है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 हो गया, 9, आई थिंक सम ऑफ द डिजिट्स आर मिसिंग, ये थर्ड इसको दे रहा है, ठीक है? 3 वाज मिसिंग, ठीक है? 6 9 एंड 10, ठीक है? चलो ये आपको डेटा गिवन है। सो दीज आर व्हाट, these are basically ranks given by these two judges on the basis of the performance of the contestants,
अब आपको देखना है, यू वांट टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट ऑफ द टू जजेस, है ना। तो अब आपको बताओ, आपको कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए हैं, नाउ यू आर गिवन रैंक्स, है ना, सॉरी, नाउ यू आर गिवन रैंक्स। तो जब भी आपको रैंक्स गिवन होंगी, यू हैव टू यूज रैंक कोरिलेशन, ठीक है, तब तो आप रैंक कोरिलेशन यूज करोगे ही। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रैंक कोरिलेशन? इट इज 1 - 6 sigma d square upon n cube minus n. This formula is very simple. ये 1 माइनस है, ठीक है, ऐसे है ये, ओके। तो ये आपने रैंक को रिलेशन यूज करना है whenever you are given ranks, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। अब आप क्या करोगे, यू विल मेक अ कॉलम फॉर डी, ठीक है, डी स्क्वायर ही कर लेना डायरेक्टली, क्योंकि डी तो डी का स्क्वायर ही करना है। तो ये आपकी रैंक 1 है एंड दिस इज योर रैंक 2। तो आप इसको माइनस करके डी का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 25 आएगा, है ना, एंड सो ऑन यू कैन फाइंड डी स्क्वायर। और यहाँ वैल्यू पुट करके यू कैन find the correlation coefficient between the taste of two judges, ठीक है। टेल मी क्लास, रैंक कोरिलेशन मैम क्लियर ये है? डी क्यों कहाँ से क्यों आया? चाहिए है? डी कहाँ से आया? अच्छा, डी क्या है आपका? इट इज R1 माइनस R2, तो रैंक माइनस करनी है बस, ठीक है। जो डी है, डी इज नथिंग बट R1 माइनस R2। तो आप 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, या 2 - 3 करेंगे तो भी तो -1 आएगा, और फिर स्क्वायर करके तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको रैंक को माइनस करके डी निकालना है, और ये रैंक कोरिलेशन मिलेगा आपको। अब आपको रैंक कोरिलेशन क्यों निकालना पड़ा जब आपके पास ऑलरेडी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है? इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि ये रैंक्स हैं, दीज आर नॉट द ऑब्जर्वेशंस, है ना, वो मैम कोई मार्क्स नहीं कैपिटल है आर या 1 से 10 ही वो आएगा ना पक्का? क्या बेटा? हाँ, मैम रैंक आर 1 की से 10 वैल्यू दी 1 है, to 10 क्योंकि और यूनिक होगा। नहीं, जो आपका रैंक को बेटा, जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगा आंसर। ये जो रैंक है, ये कह रहे हो? मैम कैपिटल आर पूछ रहा था मैं तो। नहीं नहीं, कैपिटल आर भी आपका -1 और 1 के बीच में ही आएगा, क्योंकि वो भी कोरिलेशन ही तो है। अब हमें, मैं यही डिफरेंस आपको समझाना चाह रही हूँ कि हमें रैंक कोरिलेशन चाहिए क्यों, क्यों चाहिए आपको। देखो, जब भी आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होगा, क्वालिटेटिव डेटा मींस, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे ये तो रैंक्स गिवन थी डायरेक्टली, तो आपने रैंक कोरिलेशन कर लिया। अगर मान लो हम एक सर्वे करते हैं और उसमें हम प्रेफरेंसेस लेते हैं, ठीक है, कि आप कौन सा डिटर्जेंट, कौन सा टी, कौन सी कॉफी आप, सपोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉफीज, वन इज डीकैफ एंड अदर इज नॉर्मल कॉफी, ठीक है, और आप लेते हो डेटा ऑफ 10 कैंडिडेट्स, ठीक है, कि आप डीकैफ और उस कॉफी में आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, है ना। तो आपने डीकैफ कॉफी, कॉफी, टी, तीसरा एक और ले सकते हो। तो आप, आपके पास, आप कोरिलेशन देखना चाहते हो अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड द रैंक कोरिलेशन। अच्छा, अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, सपोज वी आर, सिंस वी आर लिविंग इन हरियाणा, तो हरियाणा की ना मैं तो कुछ सिटीज लेती हूँ, ठीक है। सो वी आर टेकिंग 1 2 3 4 5 10 सिटीज हैं, ABCDEF GHIJ, 10 हो गया, आर दीज 10 सिटीज, ठीक है। अब आपके पास ना अनएम्प्लॉयमेंट है और क्राइम रेट है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्राइम रेट वी हैव सम डेटा। हम कहते हैं कि ए सिटी में अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग 3 है और वहाँ क्राइम रेट 1 है। बी सिटी में अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ 1 to 5 ले रहे हैं हम, ठीक है, 1 to 5 पे आप रेटिंग कर रहे हो, तो 5 अगर इसमें अनएम्प्लॉयमेंट 5 है, इधर भी क्राइम रेट 1 है, बट हियर द अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग इज 2 बट क्राइम रेट इज 5, ठीक है, यहाँ 2 कर देते हैं सपोज, ठीक है।
Now unemployment in the city D is 4 but crime rate is 2. ठीक है. Unemployment is 1, crime rate is 4. Unemployment is 2, crime rate is 4 again. ठीक है. तो ये आपको डेटा दिया है. On the rating है. This is the rating in the city of हरियाणा. ठीक है. कि unemployment और crime rate. तो आप बताओ कि claim of the newspaper is that कि unemployment is responsible for higher crime rate in the cities. ठीक है. अब आप चेक करना चाहते हो whether this claim is justified or not. बताओ, कर सकते हो? तो हमें क्या निकालना चाहिए यहाँ पे, बताइए. Should we find correlation coefficient or rank correlation? बताओ. ये जो आपकी 10 cities है ना, ये सिर्फ इनकी रेटिंग है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग 3 है तो क्राइम रेट 1 है. यहाँ देखो अनएम्प्लॉयमेंट 2 है लेकिन क्राइम रेट 5 है. ठीक है. हाईएस्ट क्राइम रेट है इस सिटी सी में. तो आपको इसमें रैंक कोरिलेशन निकालना चाहिए या कैपिटल आर स्मॉल आर वाला कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट. कौन सा? रैंक? स्मॉल आर. रैंक कोरिलेशन. व्हाई नॉट रैंक कोरिलेशन? स्मॉल आर कैसे निकालोगे बताओ? See, these are the ratings, my dear. Ratings means ranks in some meaning. बताओ. रेटिंग क्या है प्रत्युष? देखो रेटिंग मैम रैंक से तो ये पता चलेगा ना कि मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर है. पर दोनों वेरिएबल्स का रिलेशन तो कोई नहीं. रैंक को रिलेशन में रिलेशन ही तो है. देखो ये दो जजेस का जो टेस्ट था, फर्स्ट जज ने ये रैंक दी, सेकंड ने ये रैंक दी, तो ये आर क्या बताएगा कि हाउ द टेस्ट ऑफ टू जजेस रिलेटेड टू ईच अदर, है ना. ये जो रैंक को रिलेशन विल टेल अस how the taste of two judges is related to each other, है ना. अब unemployment and crime rate की ratings is given to you कि अगर किसी सिटी में 5 अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है तो वहाँ क्राइम रेट 2 है. अनएम्प्लॉयमेंट 4, क्राइम रेट 2. अनएम्प्लॉयमेंट 1, क्राइम रेट 4. और न्यूज़पेपर क्लेम करता है कि आपका क्राइम रेट, हायर क्राइम रेट इज बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर क्राइम रेट. तो अब आप चेक करना चाहते हो कि आपका ये जो न्यूज़पेपर का क्लेम है वो सही है या नहीं. तो हम क्राइम रेट और अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेशनशिप निकालेंगे. ठीक है. एंड दैट कैन बी फाउंड यूजिंग रैंक कोरिलेशन. ठीक है. रैंक कोरिलेशन से निकालेंगे. बताइए. प्लस मैम अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट नंबर और क्राइम नंबर्स दिए होते फ्लो स्मॉलर. अगर आपको एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट, तब हम then we can assign them ranks and then we can find the rank correlation. ठीक है. अभी मैं बताती हूँ. अभी हम हाफ एन आवर बाद मिलते हैं सब. ठीक है. तो 2 o'clock मिलते हैं. मैं उसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स बताऊंगी. ठीक है. अब ये समझ में आया आपको, रैंक एंड दूसरा कोरिलेशन? यस मैम. है ना. ठीक है. अभी आधे घंटे बाद हम मिलते हैं. ठीक. Okay, see you all at 2 p.m. So please join at 2 o'clock.